Hello friends, today we will discuss Article 19 of Fundamental Rights which comes under Part 3rd of our Indian Constitution. And in my previous video I already told you that Article 19 protects our six rights, that is right to freedom of speech and expression, right to assemble peacefully without arms, right to form association, union or cooperative society, right to move freely throughout the territory of India, right to reside and settle in any part of India, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन मीन्स फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बता रखा था कि हमें ये सारे सिक्स राइट्स जो हैं कि आर्टिकल 19 के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। एंड एक और चीज़ जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज़ द another right which is given by Indian Constitution earlier, but which is now no more be a fundamental right. It is made a legal right under Article 300A of Part 12 of our Indian Constitution, which is amended through 44th Amendment Act of 1978। मतलब कि फ्रेंड ये 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा जो है राइट टू प्रॉपर्टी को उन्होंने फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट बना दिया है। सो फिलहाल हम लोग उन सभी चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। सो हम लोग पहले केवल राइट टू फ्रीडम के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये केवल सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही वैलिड है। जैसा कि आपने अगर पिछला वीडियो भी देखा होगा तो उसमें मैंने बताया हुआ है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ अमॉन्ग द फॉलोइंग article will be for both Indian citizen and for foreigner. So we will not take a more discussion on that. So and also mention one thing that it is not for any company or corporation means that friends, article 19 protects only the citizen, not the foreigner or any company, like, okay. So and also state can impose some reasonable restrictions on the enjoyment of these six rights. So what are those restrictions? We will take a look on the that in this video itself, so please be with me. Now let's have a look on freedom of speech and expression. The first part of our as you know that six rights is protected, so we will discuss a first right, that is right to freedom of speech and expression. What are the grounds of this rights? So take a look on it. Friends, freedom of speech and expression, it implies that every citizen has right to express his view, opinion, belief and conviction freely by words of mouth, writing, printing, picturing or in any other manner. The Supreme Court held that the freedom of speech and expression includes the following. Friends, see, freedom of speech and expression is a right given to us, or we can use it as a our weapons to protect ourselves. And we have the right to express our views, that whatever we think we can express it, our belief, our conviction freely by word, whether it is by writing, whether it is by speaking something, whether it is by printing or making banners. We have all right that we can express our speech and we can express our views. Supreme Court also holds few more statements regarding the freedom of speech and expression, that you can do such things. So what are these? Let's take a look. So firstly, it is that right to propagate one's view as well as view of others. You have the right to propagate your own view, and if you also want to propagate views of your friends, then you can also propagate that. Freedom of press, as you know, freedom of commercial advertisement, no one can stop you. Right against tapping of telephonic conversation, that police cannot tap your, or anybody cannot tap your telephone without your permission. So this is also the right given under article 19 of freedom of speech and expression. Right to telecast, that is government has no monopoly on electronic media. गवर्नमेंट का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर पे कोई मोनोपोली नहीं हो सकता है, आप जो चाहें वो टेलीकास्ट कर सकते हैं, बशर्ते वो जो है कि लीगल और मोरल होना चाहिए. Right against band called by political parties or organization, right to know about government activities, freedom of silence, right against imposition of free censorship on newspaper, right to demonstration or picketing but not to right to strike. Means friends, see, yeah, this one is the last point, which is of freedom of speech and expression, that right to demonstration or picketing means that you have the right to show off your
issue to the government, or you may have the right to picketing. Means friend हो गया एक तरह से धरना देना, कि आप धरना दे सकते हो बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते हो। आप किसी भी वर्क को जो है कि आप रोक नहीं सकते हो, स्टॉप नहीं कर सकते हो। एंड स्टेट कैन इम्पोज, yes friend, the state can impose reasonable restriction on the exercise of freedom of speech and expression on ground of sovereignty of India, security of state, friendly relation with foreign states, public order, decency and morality, contempt of court, defamation and incitement of to an offense. Means that, friends, these are the ground on which our fundamental rights can be restricted. That is the, if it is a danger to our sovereignty and integrity of India, or it is a matter of security to any state, or friendly relation with any foreign countries, like suppose if we have a friendly relation with Nepal, and if some speech and expression can destroy our friendship between other country, then it may be restricted. Or like other it must satisfy our morality, public order, and so on. So this is a moreover idea about freedom of speech and expression. Now we will move to the second section of right to freedom, that is right to peacefully assemble without arms. So that is freedom of assembly. Every citizen has right to assemble peacefully without arms. Means friend, every one of the, means all the citizen of India have the right to assemble peacefully without any arms. No one can stop you from assembling. It includes the right to hold public meeting, demonstration, and take out procession. Means you have a right to make a public meeting or any, but yeah, in many other places you must have to inform your administration that yeah, you are going to do those such public meeting, or you are going to, for maintaining a public law and order, and it should not break any traffic, or it should be a moral meeting. So what are or and many more grounds are there, so we will discuss it in this video itself. So now when we take a look over next statement, that is this freedom can be exercised only on public land, and assembly must be peacefully and arms. So you must have to mention this word, that is on public land, and assembly must be full peaceful and unarmed. Means you must have to take a public meeting on a public, ऐसा नहीं होगा कि मान के चलो आपको मीटिंग करना है, आप दूसरे के घर में जाके खड़ा हो जाओ, यहाँ भाई मैं मीटिंग करने आया हूँ तेरे घर में, तो ये नहीं हो सकता है। आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाकर के आप करिए, और जो है कि साथ में वो शांतिपूर्वक होना चाहिए और बिना किसी हथियार के होना चाहिए। दिस प्रोविजन डज नॉट प्रोटेक्ट वायलेंट डिसऑर्डरली riots assembly, or one that cases that cause breach of public peace, or one that involves arms। देखिए, ये प्रोटेक्ट किया गया आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी तरह का हिंसात्मक कार्रवाई कीजिए, या फिर जो है कि दंगे कीजिए, या पब्लिक ऑर्डर को नुकसान पहुंचाइए, या फिर किसी तरह का हथियार लीजिए। स्टेट अगर चाहे तो इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, और उस रेस्ट्रिक्शन के लिए सिर्फ दो ही ग्राउंड इसमें मेंशन किए गए हैं, जैसा है कि एक sovereignty and integrity of India, and public order, including the maintenance of traffic in this area, in the area concerned। मीन्स दैट देखिए आपको दो ग्राउंड पर ही जो है कि इस तरह के मीटिंग्स करने पे या असेंबल होने पे जो है कि रोक लगाई जा सकती है, अगर उससे जो है कि किसी भी तरह का सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा होता है, या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, या फिर ट्रैफिक जो है कि उस अगर आपके उस असेंबली से जो है कि अगर ट्रैफिक को किसी तरह का नुकसान होता है, तो ये गलत है। अंडर under section 144 of CRPC, a magistrate can restrain an assembly, meeting, or procession if there is risk of obstruction, annoyance, or danger to human life, health, or safety, or a disturbance of public tranquility, or a right, or any affray। मीन्स दैट फ्रेंड अंडर 144, जैसे कि आप लोगों ने भी कई बार माइक से सुना होगा कि धारा 144, धारा 144, ये होता क्या है? इसके द्वारा क्या है कि फ्रेंड्स कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे, मजिस्ट्रेट वो जज वाला मजिस्ट्रेट नहीं फ्रेंड्स, वही वाला मजिस्ट्रेट जिसके लिए आप ये पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि डीएम,
यदि डीएम या फिर एसडीएम जो भी मजिस्ट्रेट हो वहाँ पर, तो अगर वो चाहे तो किसी भी असेंबली को रोक सकती है। वो चाहे तो अगर आप कोई किसी भी तरह का आप जो है कि गैदरिंग का प्लानिंग कर रहे हो तो आपके गैदरिंग को भी स्टॉप कर सकती है, यदि उससे ऐसा लगता है कि ये आपके इस मीटिंग से किसी भी प्रकार का जो है कि ह्यूमन लाइफ को खतरा है, किसी के हेल्थ को खतरा है, सोसाइटी के सेफ्टी को खतरा है, पब्लिक ऑर्डर में ख़राब हो सकता है, या फिर इस तरह से रिलेटेड किसी भी तरह का इशू उन्हें अगर यदि इन्फॉर्मेशन मिलती है या उन्हें महसूस होता है तो वो आपके मीटिंग को रोक लगा सकते हैं। एंड अगर हम लोग इसी में बात करें, अगर सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी, एज असेंबली ऑफ 5 or more person become unlawful if object is to resist the execution of any law or legal process। मीन्स देखिए, अगर हम लोग आईपीसी के सेक्शन 141 की बात करें तो उसके दौरान क्या है फ्रेंड्स कि 5 या उससे अधिक पीपल का जो है कि गैदर होना एक जगह पे, असेंबल होना एक जगह पे, वो जो है कि अनलॉफुल हो जाएगा अगर वो जो है कि 5 से ज़्यादा लोग मिल कर के किसी लॉ का जो है कि विरोध करे या फिर किसी लीगल प्रोसेस का विरोध करे। टू फोर्सिबली ऑक्यूपाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम अदर पर्सन, यानी कि आपने अगर बिना अधिकार का किसी का प्रॉपर्टी को अगर आपने अपने कब्जे में ले लिया है। टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रीपास, टू फोर्स सम पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट, और टू थ्रेटन द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिशियल ऑन एक्सरसाइजिंग लॉफुल पावर। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि यदि आप किसी तरह का कोई क्रिमिनल काम करना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी पर्सन से ज़बरदस्ती कोई इलीगल एक्ट करवा रहे हैं या आप गवर्नमेंट को जो है कि थ्रेटन करना चाह रहे हैं, तो ये सारे चीज़ जो है कि सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी के तहत जो है कि दंडनीय अपराध है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना। ये दोनों जो है कि आपका रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो गया। मेनली जो रिस्ट्रिक्शन हुआ आपका ये वाला पॉइंट का हुआ जो कि यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन एरिया एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर लिया है एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली कर लिया, नाउ वी विल have to look on freedom of association. What are the grounds regarding freedom of association? So all citizens have the right to form association or union or cooperative societies. Means friend, every citizen of India, every means every itself, it is a you, have the right to form association, union or cooperative society. It includes the right to form political parties, companies, partnership forms एंड एसोसिएशन के साथ साथ ये आपको पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार देती है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, कुछ भी आप बना सकते हो। एनी बॉडी ऑफ पर्सन, ये पर्सन क्या होता है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि ये एनी बॉडी ऑफ पर्सन का क्या मतलब हुआ। सो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ में। और इसी के साथ जैसे कि मैं एक और चीज़ कहना भूल गया फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है एंड आई होप कि ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगी। सो हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर कोई डाउट्स हो आपका तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली इंक्लूड्स द राइट टू स्टार्ट एन एसोसिएशन और यूनियन बट ऑल्सो टू कंटिन्यू विद द यूनियन एसोसिएशन और यूनियन एज सच। ये केवल आपको स्टार्ट करने का ही परमिशन ही देती है, बल्कि आपको उस यूनियन को या उस कंपनी को या उस फर्म को आपको मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए भी अधिकार देती है कि आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्दर इट कवर्स द नेगेटिव राइट्स of not to form or join an association or union. Reasonable restriction can be imposed on exercise of this right by the state on the ground of sovereignty and integrity of India, public order and morality. So आपके एसोसिएशन बनाने पर भी फ्रेंड्स जो है कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रेस्ट्रिक्शन का ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यदि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को किसी भी तरह का कोई खतरा होता है या अगर कोई पब्लिक ऑर्डर या उसका मोरालिटी। सपोज अब आप किसी गलत चीज़ के लिए एसोसिएशन बनाना चाहते हो जिसमें आप किसी तरह के गलत थॉट्स को आप बढ़ावा देना चाहो, तो उस चीज़ का तो परमिशन नहीं मिल सकता है आपको। तो सब्जेक्ट टू दिस रेस्ट्रिक्शन द सिटीजन्स, एंड नाउ वी विल हैव टू मूव दिस पेज एंड वी विल टेक अ लुक ऑन other aspects of right to association, that is, yeah, I hope it is visible to all of you. Yes, have completely liberty to form association or union for pursuing lawful objective and purpose. However, the right to obtain recognition of association is not fundamental right. Friends, you have right to fundamental right. Right to form association is a fundamental right,
बट ऑब्टेनिंग रिकॉग्निशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। मीन्स दैट कि सरकार ने आपको परमिशन दे दिया कि हाँ आप एसोसिएशन बना सकते हो, लेकिन वो रजिस्टर्ड होगा कि नहीं होगा इस चीज़ का अधिकार सरकार ने आपको नहीं दिया है। वो मौलिक अधिकार नहीं है, वो सरकार या जो गवर्नमेंट है या जो डिपार्टमेंट अथॉरिटी है ये उनके पास राइट है कि वो आपको जो है वो रजिस्टर्ड करते हैं या नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रेड यूनियन हैव नो गारंटी राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और राइट टू स्ट्राइक और राइट टू डिक्लेयर अ लॉकआउट। द राइट टू स्ट्राइक कैन बी कंट्रोल बाय एन अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ। जो कई सारे ट्रेड यूनियंस होते हैं उन लोगों के पास भी अधिकार नहीं है कोई किसी तरह का स्ट्राइक कर सके। हाँ, पीसफुली असेंबल होकर के वो जो है कि पिकेटिंग कर सकते हैं यानी धरना दे सकते हैं, लेकिन उन्हें हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। वो उनका जो अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ होगा उसी के माध्यम से वो हड़ताल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स अपने अगले सेक्शन की, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये हमारा फोर्थ सेक्शन हो जाएगा क्योंकि हमने 3 सेक्शन कंप्लीट कर चुका है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। सो ये हमारा चौथा पार्ट हो जाएगा आर्टिकल 19 के अंदर में। सो ये क्या कहता है फ्रेंड्स, चलिए इस पर भी हम लोग एक बार लुक कर देख लेते हैं। दिस फ्रीडम इंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ कंट्री। ही कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन अ स्टेट। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि देखो कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया हो वो फ्रीली टेरिटरी ऑफ कंट्री के में विजिट कर सकता है, घूम सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। वो किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक जगह से दूसरे स्टेट में कहीं भी जो है कि वो ट्रैवल कर सकता है। दिस राइट अंडरलाइन द आइडिया दैट इंडिया इज़ वन यूनिट सो फार एज सिटीजन आर कंसर्न। इसका एक ही उद्देश्य है फ्रेंड, ताकि ये आप लोगों को ये इंडिकेट कर सके कि इंडिया जो है कि एक यूनिट है, इंडिया किसी अलग हिस्सों में नहीं टूटा हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। थस द पर्पोज इज़ टू प्रमोट नेशनल फीलिंग नॉट पैरोक्यालिज्म। इसका मतलब है फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप अंडरलाइन कर लो इस वर्ड को। नेशनल फीलिंग यानी कि राष्ट्रवाद का जो है कि आपको राष्ट्र का एक वो होना चाहिए, फील आना चाहिए। चूँकि देखो कई बार क्या होता है हमारे कंट्री में बिहारी, झारखंडी जो है या फिर साउथ इंडियंस या फिर जो है कि यूपी वाले, इस तरह का अलग अलग वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। इसी चीज़ को जो है कि वो ख़त्म करना चाहती है। इसे हम लोग बोलते हैं संकीर्ण विचारधारा। ये जो पैरोक्यालिज्म है फ्रेंड्स, इसे हम लोग संकीर्ण विचारधारा बोलते हैं, जिसका कि ये विरोध करती है। और नेशनल फीलिंग को, यानी कि हम लोग बिहारी बाद में हैं, हम लोग झारखंडी बाद में, हम लोग यूपी वाले बाद में, हम लोग दिल्ली वाले बाद में हैं, हम लोग हरियाणवी बाद में हैं, हम लोग पहले हिंदुस्तानी हैं। तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ किया जाता है। एंड फ्रेंड्स इसमें भी जो है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, और जो कि 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। ये 2 ही ग्राउंड पे आपके मूवमेंट को रोका जा सकता है। यदि कोई जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट हो कि भाई ये चीज़ नहीं आना चाहिए, या फिर जो है कि वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि देश का हमारे देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी जो है कि आपको जाने से रोका जा सकता है कहीं पे। द एंट्री ऑफ आउटसाइडर इन ट्रैवल एरिया इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू प्रोटेक्ट डिस्टिंक्टिव culture, language, custom, manner of scheduled tribes and to safeguard their traditional vocation and property against exploitation। कहने का मतलब है फ्रेंड्स देखिए, आउटसाइडर का एंट्री ट्राइबल एरिया में रोका जा सकता है उनके डिस्टिंक्टिव कल्चर को बचाने के लिए, लैंग्वेज को, कस्टम्स को, उनके मैनर्स ट्रेडिशन को बचाने के लिए जो है कि, और उनका जो प्रॉपर्टी है वो बाहरी के द्वारा जो है कि वो एक्सप्लॉइट ना हो जाए, उसे बचाने के लिए जो है कि ये आपके ऊपर पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। सो ये बात रही इनके बारे में। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक मोरल। देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर कोई प्रोस्टिट्यूट जो है, अगर वो उन्हें जो है कि अगर चाहे तो जनरल पब्लिक हेल्थ के रिस्पेक्ट में या फिर जो है कि पब्लिक मोरल के रिस्पेक्ट में जो है उन्हें जो है कि यहाँ वहाँ मूव करने से रोका जा सकता है। द बॉम्बे हाई कोर्ट वैलिडेट द रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय एड्स। पहले क्या हुआ था एड्स को एक सीन माना जाता था, यानी एक पाप माना जाता था, और लोग उन्हें भी यहाँ वहाँ आने जाने से रोका करते थे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है कि एड्स से अफेक्टेड पीपल्स को यहाँ वहाँ ट्रैवल करने का परमिशन दे दिया है। नाउ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हैज़ 2 डायमेंशन। देखिए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का जो है कि 2 डायमेंशन है।
एक कि राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, दूसरा राइट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री एंड राइट टू कम बैक टू द कंट्री। देखिए जो ये जो दो डायमेंशन है फ्रेंड्स, यानी एक तो क्या आप कंट्री के अंदर में कहीं भी घूम सकते हो, दूसरा क्या कि आप जो है कि कंट्री के बाहर भी जा सकते हो और वापस भी आ सकते हो। तो आर्टिकल 19 केवल पहले डायमेंशन को ही मतलब प्रोटेक्ट करता है, दैट इज़ राइट टू मूव इनसाइड द कंट्री, नॉट आउटसाइड। आउटसाइड को वो मतलब प्रोटेक्ट नहीं करती है। और ये जो सेकेंड डायमेंशन है वो जो है कि हमारा आर्टिकल 21 के द्वारा जो है कि प्रोटेक्ट किया जाता है, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। सो आई होप कि ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है कि आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है कि अपने अगले सेक्शन में आते हैं और वो है हमारा फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। फ्रेंड्स ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस जो है ये दोनों लगभग लगभग एक जैसा है। सो कुछ सेंस में जो है कि ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, जैसे कि हम लोग देख लेते हैं। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। या every citizen has the right to reside and settle in any part of territory of country. As you all know, this right has two parts: a right to reside in any part of country, which means state or any place temporarily, or the right to settle in any part of country, which means to set up a home or domicile at any place permanently। देखिए इसके दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एक तो कि आप टेम्प्रोरी कहीं पर जाके आप स्टे करिए, और दूसरा क्या कि आप परमानेंटली वहाँ का डोमिसाइल हासिल कर लीजिए। ये राइट जो है कि इंटेंडेड टू रिमूव इंटरनल बैरियर विद इन द कंट्री और बिटवीन एनी पार्ट ऑफ इट्स। सो देखिए कहने का मतलब ये थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जांपल दिया कि बिहारी, यूपी, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, राजस्थानी, ये सब जो गुजराती, ये सब जो है कि फ्रेंड इसी बैरियर को ख़त्म करने के लिए जो है कि हमारा ये फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस जो है इसी बैरियर को ख़त्म करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दिस प्रमोट्स नेशनलिज्म एंड अवॉइड नैरो माइंडनेस। ये जो पार्क्योलिज्म मैंने एक वर्ड बोला आपको, उसका मतलब ये नैरो माइंडेडनेस होता है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि राष्ट्रवाद का जो है कि ये को प्रमोट करना और जो है कि संकीर्ण विचारधाराओं को जो है कि निगलेक्ट करना है। एंड साथ ही साथ फ्रेंड्स स्टेट अगर चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, लेकिन वो क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे ये हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं। तो इनका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फ्रेंड्स और जो हमारा राइट टू मूवमेंट का जो फ्रीडम टू मूवमेंट का जो था उन दोनों का, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, just a moment friend, I am extremely sorry for having trouble in this video. I hope it is visible to you. So interest of general public and I think brightness ज़्यादा हो गया है आपके वीडियो में। यस कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जनरल पब्लिक या फिर जो है कि किसी भी शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए जो है कि आपके इस अधिकार को आपसे वंचित किया जा सकता है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस के अधिकार को, यदि वो ट्राइबल के जैसा मैंने पिछले सेक्शन में भी बताया आपको क्या कि अगर ट्राइबल्स के जो है कि डिस्टिंक्टिव कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन को जो है कि सिक्योर करने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, तो सेम वही चीज़ इसमें है। Right of outsider to reside and settle in any tribal area is restricted to protect distinctive culture, language, custom and manner of scheduled tribe and to safeguard their traditional vocation and property against exploitation। देखिए ये सारे बिंदु जो हैं इस वजह से आपको रोका जा सकता है ट्राइबल एरिया में रिसाइड करने से, जैसे कि उनके डिस्टिंक्टिव कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, लैंग्वेज को, कस्टम्स को, पहनावा को एंड मैनर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब जिस तरीके से रहते हैं, सेफगार्ड देयर ट्रेडिशनल वोकेशन, प्रॉपर्टी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उनके ज़मीन को या उनके प्रॉपर्टीज़ को आप किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं, उसके लिए भी आपको रोका जा सकता है। अब इस विषय में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है हम लोग इस बारे में भी जो है कि बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और स्टेटमेंट है जो कि मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ। इन मैनी पार्ट ऑफ कंट्री द ट्राइबल हैव बीन परमिटेड टू रेगुलेट देयर प्रॉपर्टी इन
अकॉर्डेंस विथ देयर कस्टमरी रूल्स एंड लॉ। देखिए बहुत सारे पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में जो है, जैसे कि झारखंड में ले लीजिए, वहाँ पे क्या है कि उनके प्रॉपर्टीज़ का जो है कि रेगुलेशन चालू है, प्रॉपर्टीज़ जो है कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन उनके अपने कस्टमरी लॉज और रूल्स के माध्यम से। जैसे कि झारखंड में आपको मालूम होगा कि सीएनटी और एसपीटी है, जिसके माध्यम से कि सिर्फ ट्रैवल का ज़मीन सिर्फ ट्रैवल ही खरीद सकता है, अदर नॉन ट्रैवल्स नहीं खरीद सकता है। सो ये बात रही उनकी। तो अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस विषय में। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द सर्टेन एरिया कैन बी बैंड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ person like prostitute or habitual offenders. Like you have the freedom to movement of you have the freedom to movement, or you have the right to freedom of residence. But if administration wants, then he can stop few peoples like prostitute or habitual offender। यानी कि यदि कोई prostitute है या फिर कोई जो है कि habitual offender यानी कि कोई क्राइम करने वाला है, या कोई हैबिचुअल कोई मिस्टेक्स करता है, गलती करता है, उन्हें किसी खास जगह पर रिसाइड करने से रोका जा सकता है। फ्रॉम द above it is clear that the right to residence and right to movement are overlapping to some extent, but both are complementary to each other। देखिए जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि राइट टू मूवमेंट और राइट टू रेसिडेंस जो है कि ये दोनों एक लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है फ्रेंड्स, यानी कि एक दूसरे का सपोर्टर है। अब देखिए अगर आप कहीं भी मूव करेंगे तो उसके लिए आपको वहाँ जाने के बाद रिसाइड तो करना ही पड़ेगा, भले ही टेम्प्रोरी हो। ये आ गया ना आपका इस सेक्शन में। यदि आप कहीं पे जाके रिसाइड कर रहे हैं यानी कि आप मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। सो हम लोग अपने आखिरी जो है कि आर्टिकल 19 के द्वारा जो आखिरी राइट्स हमारा प्रोटेक्ट किया जाता है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो हम लोग इस विषय में भी हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे कि है ऑल सिटीजन्स आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मीन्स फ्रेंड्स की सारे सिटीजन के पास जो है कि राइट है प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। दिस राइट इज़ वेरी वाइड एज इट कवर्स ऑल मीन्स ऑफ अर्निंग वंस लाइवहुड। देखिए ये काफ़ी वाइड राइट्स है, जैसे कि ये पैसा कमाने के या अर्निंग कर जीवन जीने के लिए जो अर्निंग होती उसके सारे पहलू को ये जो है कि सारे पहलू को जो है कि ये प्रोवाइड करता है, या उस पर जो है कि आपको अधिकार देता है। अब वो क्या क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट्स इन इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। फर्दर द स्टेट इज एम्पावर्ड टू। देखिए स्टेट अगर चाहे तो इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में, लेकिन उसके अलावा भी स्टेट के पास क्या अधिकार है, प्रेस्क्राइब प्रोफेशनल और टेक्निक या prescribe a professional or technical qualification necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade और business। मतलब कि देखिए अगर स्टेट चाहे तो जो है कि प्रोफेशनल को हायर कर सकती है, किसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन को ज़रूरी बना सकती है, किसी भी चीज़ को जो है कि मतलब बिजनेस को करने के लिए। सपोज़ अगर आप अभी कंपटीशन एग्ज़ाम जो फाइट करते हो या कोई भी चीज़ में एडमिशन लेते हो आप, तो उसके लिए क्या है, या कोई नौकरी लेते हो आप, तो उसके लिए क्या है फ्रेंड्स कि आपको एक एग्जामिनेशन देना पड़ता है, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो ये स्टेट के पास अथॉरिटी है कि किसी खास तरह के जॉब के लिए वो किसी टेक्निकल क्वालिफिकेशन को एलिजिबिलिटी बना सकती है, किसी बिजनेस करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी दे सकती है। सो उसके लिए आप नहीं कर सकते हो, बाकी आपको किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें, लेकिन हाँ एलिजिबिलिटी आपको फुलफिल करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि कैरी ऑन बाय इटसेल्फ, carry on by itself any trade, business, industry or service whether to exclusion of citizen or otherwise। देखिए किसी भी तरह का आप जो है कि वो अगर स्टेट चाहे तो ट्रेड, बिजनेस या इंडस्ट्री या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, या फिर उसमें से किसी भी सिटीजन को जो है कि बाहर कर सकता है पूरी तरह से, या वो पार्सली रूप से उसे निकाल सकता है या रख सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर पे, क्योंकि उनका अपना एक जो है कि किसी भी चीज़, किसी भी वर्कर को रखने का उनका एक अपना एक एलिजिबिलिटी और एक अपना एक उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। तो उस आधार पे यदि आप फिट बैठते हैं तो आपको कोई नहीं हटा सकता, लेकिन यदि वो चाहे तो अपने उस आधार पे वो आपको अपने वर्क से निकाल सकती है। So there thus no objection can be made when state carries on trade, business, industry or service, either monopoly,
completely or partially to exclusion of citizen all or same or in competition with any citizen. The state is not required to justify its monopoly. देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है, बस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यही दो थे कि आपके लिए एलिजिबिलिटी दिया जा सकता है. सो ये रहा हमारा सारे 6 राइट्स जो कि हमारा प्रोटेक्ट किया जाता है आर्टिकल 19 के द्वारा, जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. एंड इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फिर से एक चार्ट दे रखा है आपके लिए, ताकि आप सारे आर्टिकल्स को एक साथ रिकॉल कर सको. एंड इसी के साथ हमारा ये आर्टिकल 19 का सेक्शन ख़त्म होता है. और अगला वीडियो में आपको कौन सा आर्टिकल चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएं. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप all confusion regarding article 19 must be resolved. And thank you friends once again for watching this video. And if you have not subscribed my channel yet, then please subscribe it for latest update of my YouTube channel. And believe me friend, this is new YouTube channel but will be very helpful for your preparation. So stay with us. Thank you once again. Have a great future.